So, everyone note down. In today's class, we are going to start from some number 7 onwards, right? We are going to start from number 7 onwards because till number 6, all the questions are done in the class. It's complete. Is it clear or not? Check once. Question number 6 तक सारा कुछ complete है. Check कर. So the first doubt of today's class is number 6, question number D. So I'm taking LHS, which is 1 plus cos 2 theta plus cos 6 theta whole thing divided by cos 4 theta, and we have to show that it is equals to sin 3 theta divided by sin theta. ये हम लोग को शो करना, ठीक है? तो एक बार ध्यान से नोट करना. सबसे पहला चीज हम लोग इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So if we simplify, we will apply cos A plus cos B formula, which is 2 cos A plus B divided by 2, which is 4 theta, into cos of A minus B divided by 2, which is minus 2 theta. So we are finding that cos 4 theta gets cancelled, and we have 1 plus 2 cos of minus 2 theta. And you know that cos of minus theta is equals to how much? It is equals to cos theta. Cos of minus theta is equals to how much? Cos theta. ये formula सबको को पता ही है. We have started, I mean we have used this in the beginning only. That cos of minus theta is equal to cos theta. Now after this line, now we need to check the right hand side. In order to prove right hand side, now what is the requirement? I mean, can you, like, the thing is this, कि इस expression को हम किस form में convert करेंगे? This is only possible if we see the right hand side expression. तो अगर हम right hand side expression को देखें, तो मुझे यहाँ पे sin 3 theta दिख रहा है, और sin 3 theta का formula क्या होता है? What is the formula of sin 3? It is clearly 3 sin theta minus 4 sin cube theta. तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम राइट साइड ये जो, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को sin थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो आंसर दिख रहा है कि आ रहा है आंसर. ओके, हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि sin 3 थीटा लाने के लिए हम लोग को 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा लाना पड़ेगा. So now what I will be doing? See, I've got 4 formulas of cos 2 theta. Cos 2 theta का हमारे पास 4 फॉर्मूला है, ठीक है? 4 फॉर्मूला. वो 4 फॉर्मूला क्या-क्या है? एक है cos स्क्वायर, चेक वंस. cos 2a का बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोग के पास पता है. एक है cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a, चेक इन योर कॉपी. सेकंड वन इज 2 cos स्क्वायर a minus 1. थर्ड वन इज 1 minus 2 sin स्क्वायर a, एंड फोर्थ वन इज 1 minus tan स्क्वायर a by 1 plus tan स्क्वायर a. तो अब हम लोग को राइट हैंड साइड में अगर ये प्रूव करना है राइट हैंड साइड, तो मतलब हम लोग को sin थीटा के फॉर्म में हमको रिजल्ट लाना पड़ेगा. सो डेफिनेटली हम cos 2a का तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. सो टेल मी, अगर हम cos 2a का तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल बी cos 2 थीटा? क्लियरली इट विल बी 1 minus 2 sin square theta. Let us open the bracket, and so we are getting 3 minus 4 sin square theta. Now to prove this part, अब तो मुझे बताओ एक बार, ये लाइन के बाद मुझे ये लाइन कैसे मिल जाएगा बताओ? ये लाइन के बाद ये मुझे कैसे मिल जाएगा बताओ? बहुत सिंपल, एक लाइन देखिए मुझे पता चल रहा है. into and divide sin theta. So numerator and denominator को हम लोग sin theta से मल्टीप्लाई कर देते हैं. Let us multiply numerator and denominator by sin theta. तो ये हो जाएगा 3 sin theta minus 4 sin cube theta by sin theta. Now what is 3 sin theta minus 4 sin cube theta? This becomes sin 3 theta. Sin 3 theta. Which is equal to RHS. All right, I hope it is clear. इस लाइन के बाद मैंने ये कैसे सोचा कि ये लाना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin थीटा है और न्यूमरेटर में 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा. So I am multiplying this entire expression का डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin थीटा से मल्टीप्लाई. So this is number 6 का number D. Now let us see 10 का D, J and K.
So everyone note down number 10 का D. This is the second doubt of today's class. So it is sec of 8 theta 8a sec 8a minus 1 by sec 4a minus 1 and we have to show that it is equals to tan 8a by tan 2. हम लोग को शो करना है कि ये tan 8a by tan 2a के बराबर है, ये हम लोग को शो करना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग इस पूरा को हम लोग पहले साइन कॉस में एक्सप्रेस कर लेते हैं। बिकॉज़ तुम लोग को देखो ये क्लास 10 से तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बताया जा रहा है कि अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ना समझ में आ रहा हो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले तुम दिमाग लगाओ जैसा है वैसा उस फॉर्म में। अदरवाइज इफ यू आर नॉट एबल टू डू, द बेस्ट थिंग इज यू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन दिस सम आल्सो। सो इन दिस सम वी कैन राइट sec 8a as 1 by cos 8a. All right, we can write sec 8a as 1 by cos 8a. sec 4a is 1 by cos 4a. Take LCM. न्यूमरेटर का अलग एलसीएम लो, डिनोमिनेटर का अलग एलसीएम। इस पार्ट को अलग सॉल्व करो तो यहां पे आ जाएगा 1 minus cos 8a डिवाइडेड बाय cos 8a और यहां पे आ जाएगा 1 minus cos 4a divided by cos 4a. Is this clear to everyone? Okay, next. What is a by b divided by c by d? It is a by b into d by c into reciprocal of the denominator part which we have here. So if I write the reciprocal of denominator part, we will get cos 4a by 1 minus cos 4a. Now इसको सिंप्लीफाई करके लाना है tan 8a। तो एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं एक बार, ठीक है? तो एक बात बताना तुम लोग, 1 minus cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 minus cos 2a का फॉर्मूला 2 sin square a. 2 sin square a। तो एक बात बताओ, अगर मान लो 2a का हाफ a बन जा रहा है, तो अगर मान लो 2a की जगह पे अगर 8a है तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ तो? 2 sin square 4a. It will be 2 sin square 4a into cos 4a we have here। इसका मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है? और यहां मैंने cos 4a जैसा वैसे रहने दी by cos 8a into 1 minus cos 4a becomes how much? Tell me. 2 sin square 2a. It is 2 sin square 2a। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखना एक बार कि मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए। देखो एक बार हमको चाहिए tan 8a। तो tan 8a का मतलब होता है न्यूमरेटर में sin 8a और डिनोमिनेटर में cos 8a चाहिए, ठीक है? न्यूमरेटर में चाहिए sin 8a और डिनोमिनेटर में cos 8a। तो देखो डिनोमिनेटर का cos 8a ऑलरेडी यहां दिख रहा है, मतलब मुझे अभी फिलहाल डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कुछ नहीं करना है। मैं एक एक करके सोच रहा हूं, पहले ये लाने का सोच रहा हूं। मतलब मुझे अगर मान लो tan 8a चाहिए, मतलब मुझे न्यूमरेटर में sin 8a और डिनोमिनेटर में cos 8a चाहिए। So we already have here cos 8a in the denominator. Let us try to get sin 8a in the numerator part. तो देखो एक बार मुझे ध्यान से देख के बताना एक बार, यहाँ पे एंगल्स 4a दिख रहे हैं लेकिन कहीं भी 8a है नहीं। तो अब हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि 2 sin a into cos a से एंगल डबल हो जाता है। देखो अगर ये फॉर्म में होता है तो ये एंगल डबल हो जाता है, मतलब ये आ जाता है sin 2a। चेक इन योर कॉपी। और अभी तक हम लोग ने बहुत बार ये अप्लाई भी कर लिया है। तो मैं क्या करूंगा, देखना एक बार इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखूंगा। ध्यान, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? देखना ध्यान से, 2 sin square 4a into cos 4a को 2 into sin 4a into cos 4a into sin 4a, प्लीज चेक वंस। क्या मैं 2 sin square 4a into cos 4a को सिर्फ 2 sin 4a into cos 4a into sin 4a लिख सकता हूं? Now why I'm writing this in this form? Just check once. I'm writing in this form so that I can write 2 sin 4a into cos 4a as what? Tell me. बताओ क्या लिख सकते हैं? sin 8a। काम क्या हम लोग को sin 8a लाना मुझे न्यूमरेटर में जरूरत है, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos 8a जो चाहिए वो दिख रहे हैं। ओके, सो डिनोमिनेटर का cos 8a मुझे यहाँ दिख रहा है, हमको न्यूमरेटर में sin 8a चाहिए।
एंड कीप दिस एज इट इज, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, सो कीप एज इट इज, इसको जैसा है वैसे रहने दो। 2 sin 4a into cos 4a becomes sin 8a. All right. Now can I write sin 8a by cos 8a as tan 8a? तो चलो एटलीस्ट हम लोगों ने एक पार्ट तो ला दिया, अब हम दूसरे पार्ट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट के बारे में सोचेंगे। तो दूसरा पार्ट हमको डिनोमिनेटर में चाहिए tan 2a, तो डिनोमिनेटर में tan 2a का मतलब मुझे डिनोमिनेटर में sin 2a चाहिए बाय cos 2a। तो बाय cos 2a को अगर हम ले देख इसको प्रॉपर तरीके से लिख दें, मतलब अगर हमको tan 2a चाहिए तो मुझे इसका डिनोमिनेटर में sin 2a चाहिए और न्यूमरेटर में cos 2a चाहिए। Try to understand. I need in the denominator sin 2a and I need in the numerator cos 2a. अच्छा एक बात बताओ तो sin 2a डिनोमिनेटर में दिख रहा है? Yes, tell me. क्या sin 2a डिनोमिनेटर में है? तो मुझे डिनोमिनेटर को लेके कुछ नहीं करना चाहिए, डिनोमिनेटर को ऐसे ले लो। sin 4a को मुझे क्या करना है, डबल बनाना है या आधा करना है बताओ? आधा करना मतलब मुझे इससे ये फॉर्म में लाना है, आधा करना है तो इससे इस फॉर्म में, और डबल करना होता है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे मुझे ये डबल करना था, ठीक है, 8a डबल करना था तो मैंने इससे इस फॉर्म में लिखा। तो बताओ तो sin 4a क्या होगा बताओ? 2 sin 2a cos 2. 2 sin 2a cos 2. It's 2 sin 2a into cos 2a. टू गेट्स कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे sin 2a का एक फैक्टर कैंसिल हो गया तो बचा है tan 8a into cos 2a डिवाइडेड बाय sin 2a। प्लीज चेक कौन सा लिखूं, 2 गेट्स कैंसिल, sin का एक फैक्टर कैंसिल हो गया तो बचा cos 2a by sin 2a। कैन आई राइट दिस एज all right everyone, can I write cos 2a by sin 2a as cot 2a, जिसको हम डिनोमिनेटर में अगर ले जाएं तो क्या होगा tan 2a। हाँ तो समझ में आ रहा होगा ये क्या है, तो फटाफट एक बार इसको कॉपी करें। So sum number J, let us take LHS, which is tan 5 theta plus tan 3 theta divided by tan 5 theta minus tan 3 theta is equals to 4 cos 2 theta into cos 4 theta। ये हम लोग को शो करना है। So एक बार ध्यान से नोट करना। See, just ये hardly it will take 2-3 lines। सबसे पहले हम सबको sin cos में कन्वर्ट कर देते हैं। So this is sin 5 theta by cos 5 theta plus sin 3 theta by cos 3 theta. This is sin 5 theta by cos 5 theta and this is sin 3 theta by cos 3 theta. Let us take LCM now. Now if I take LCM, you will get sin 5 theta, okay, sin 5 theta into cos 3 theta plus cos 5 theta into sin 3 theta, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा cos 5 theta into cos 3 theta। Same way take LCM here also, so you get sin 5 theta into cos 3 theta minus cos 5 theta into sin 3 theta। Now cos 5 theta into cos 3 theta gets cancelled, ठीक है, तो बचा क्या, it is sin 5 theta into cos 3 theta plus cos 5 theta into sin 3 theta divided by
sin 5 theta into cos 3 theta minus cos 5 theta into sin 3 theta. Now can you tell me ये कौन से फॉर्मूला इसको सिंपलीफाई करने का बताओ तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है sin a into cos b plus cos a into sin b. So what is sin a into cos b plus cos a into sin b? It is sin of a minus b, a plus b sorry. और ये हो जाएगा sin a into cos b minus cos a into sin b is sin of a minus b. So this becomes sin 8 theta and this becomes sin 2 theta. अब हम लोग को चाहिए आंसर 4 cos 2 theta cos 4 theta. तो सीधा सा बात है मुझे इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो बताओ तो एक बार sin 2a का अगर फॉर्मूला 2 sin a into cos a अगर होता है तो फिर sin 8 theta का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता देंगे? 2 sin 4 theta cos 2 sin 4 theta cos 4 theta. ऑलराइट cos 4 theta. ठीक है. और अगर हम इसको वापस से हाफ एंगल में कन्वर्ट करें sin 4 थीटा को तो क्या होगा ये? ओके आगे sin 2 theta gets cancelled. We have 2 to the 4 cos 2 theta into cos 4. Okay, so what I have done is मैंने यहाँ तक तो सिंप्लीफाई किया. इसके बाद मैंने प्रूफ पार्ट में देखा तो पहले 8 थीटा को उसके हाफ एंगल में कन्वर्ट करो और जब हाफ में आ गया तो उसको वापस हाफ एंगल में कन्वर्ट करो. यू गेट द आंसर. कॉपी डाउन. The last doubt of today's class is number K. देखो हम लोग को 2 cos थीटा आता है तो ध्यान देना एक बार. सबसे पहला चीज 1 plus cos 2a का फॉर्मूला आता है 2 cos square a. ऑलराइट, द फॉर्मूला ऑफ 1 plus cos 2a is 2 cos square a. ऑलराइट, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ देखना एक बार. सबसे पहला चीज कि यहां से मैं दोनों टर्म्स में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ. ठीक है, आई एम टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम बोथ दीस टर्म्स. Now what is 1 plus cos 4 theta? Tell me. 2 cos square 2 theta. It's 2 cos square 2 theta. Two to the 4. Now 4 cos square 2 theta का अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो क्या होगा? It is 2 cos 2 theta. अब वापस से इन दोनों में समझ आए तो 4 का स्क्वायर रूट 2 इसका cos 2 theta. वापस से इन दोनों टर्म्स में सिर्फ 2 कॉमन ले लेते हैं. So tell me what is 1 plus cos 2 theta? 2 cos square 2 theta. cos square 2. 2 to the 4 काफी सिंपल सा है. Okay, now let us start our class today. Other questions? Let's copy down fast. Now, I want your attention here. Just a minute. सबसे पहला चीज ध्यान रखना. अच्छा, पहले मैं ये लिखने से पहले मैं बता दूं कि साइन और कौन सा फंक्शन कंप्लीमेंट्री होता है. मतलब साइन का एंगल और कॉस का मैंने बोल ही दिया डायरेक्ट कि साइन का एंगल और कॉस ऑफ ये एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल इक्वल होता है ना. इक्वल होता है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं साइन 70 डिग्री बोल रहा हूं
तो ये cos किस एंगल के बराबर होगा बताओ? 20 20 degree. अब देखो ये ध्यान से नोट करना कि 70 से 20 कैसा है? 90 minus 20 90 minus 70 sorry 90 minus 70 I'm sorry 90 minus 70 78 ठीक है is equals to 20. तो ठीक उसी तरह से अगर मान लो मैं ये बोलूं कि tan 80 degree is equals to cot of how much, तो ये कैसे आएगा? 10 degree. 90 minus 80. 10 डिग्री बन जाता है. और सिमिलरली सेक फंक्शन एंड कोसेक फंक्शन में इस तरह का रिलेशनशिप देखने को मिलता है. ऑलराइट, अब देखो, अब एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री. complement और सप्लीमेंट्री क्या होता है बताओ तो? 180 तो जिसका सम 180 होता है. वेरी गुड, जिसका सम 180 डिग्री हो जाता है. तो 180 डिग्री लिखो या पाई लिखो, 90 डिग्री लिखो या पाई बाय 2 लिखो, एक ही बात है. ठीक है, एक ही बात है. अब देखना है, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर सपोज 30 30 डिग्री लिख रहा हूं और यहाँ पे मान लो कॉस स्क्वायर लेट्स से 50 डिग्री 40 डिग्री लेट्स से, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सपोज साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और मुझे अगर बोला जा रहा है इवैल्यूएट करो, क्या बोला जा रहा है? इवैल्यूएट. तुम याद करो, आई डोंट नो ये क्लास 10 में था या नहीं, शायद इस बार ये चीज एलिमिनेट हुआ था, आई रिमेंबर, बट फिर भी बहुत लोग किए थे क्लास 10 में ये चीज. सीबीएसई में ये चीज पैंडेमिक के कारण हटा दिया गया था शायद. तो एक बार फिर भी मैं बता दूं, अगर इस तरह का सम मिले तो सबसे पहले हम लोग एंगल का सम को चेक करेंगे कि ये दोनों एंगल्स का सम क्या है बताओ. 90 degree. इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी एक को मैं फिर cos क्या लिख square सकता 40 हूं? हो जाएगा. cos Cos 50 को क्या लिख सकता हूं? cos 40 डिग्री, राइट. अगर sin 50 को मैं cos 40 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा? cos square 40. Now what is sin square theta plus cos square theta? 1. Alright, is this clear everyone? अब देखो next. Yes, sir. अब ध्यान से देखना एक बार, अगर मान लो मैं सपोज मैं यहाँ पे sin square पाई बाय 9 लिखा मैंने, ठीक है, पाई बाय 9 लिखा मैंने, और यहां पे मैंने लिखा ओके, देखने को प्लीज एवरीवन ट्राई टू सी. देखो अभी जो मैंने तुम लोग को एंगल को डिग्री में दिया, ठीक है, सुनना एक बार, मैंने यहाँ पे डिग्री में दिया तो बहुत अच्छे से दिख रहा था कि 40 प्लस 50 90 हो जाता है. तो फिर हम किसी एक को, ऐसा जरूरी नहीं है कि साइन को, मतलब साइन 50 डिग्री को, यू कैन डू सेम फॉर साइन 40 डिग्री आल्सो. अब एक बात बताओ, ये सम आया, ठीक है, अब एग्जाम में क्या हुआ देख के तुम लोग पैनिक हो गए. सुनना, लिसन हियर, आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन. आता भी है फिर भी यहाँ पे अटेंशन से देखो, मैं और इस तरह का बहुत सम दूंगा, तुम लोग घर में प्रैक्टिस करना. तो इस तरह का अगर सम आया मान लो, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे पता है? एंगल्स चेक करेंगे. हम लोग बहुत लंबा तरीका नहीं सोचेंगे, sum of angles. ठीक है, ये दोनों का एंगल्स का सम चेक करेंगे. तो बताओ तो पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 को ऐड करके क्या आ रहा है बताओ तो? पाई बाय 2 मतलब ये क्या है बताओ तो? क्या है बताओ तो? 90 मतलब ये degree. दोनों एंगल्स, मतलब ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बोल सकते हैं हम Yes, लोग. sir. जी अब सर. हम क्या करेंगे देखना है, किसी एक को, इट्स नॉट कंपल्सरी कि इसी को या फिर इसी को, किसी एक को, मान लो मैंने साइन 3 पाई बाय 8 को ले ली और मैं उसको लिख दूंगा क्योंकि उनको पता है कि दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री है. इसका मतलब मैं इस एंगल को cos 90 माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूं. चेक करो क्या मैं 3 पाई बाय 8 के जगह पे, सुनना एक बार, क्या मैं 3 पाई बाय 8 के जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस, जस्ट अ मिनट एवरीवन, माइनस 3 पाई बाय 8 लिख सकते हो. चेक करो, because you know that Yes, cos sir. 90 minus theta, please look, listen here, cos 90 minus theta is equals to how much? sin theta. पता है ना तुम लोगों को कि sin theta क्या होता है? cos
90 माइनस थीटा होता है। तो अब देखो, तुमको ये भी पता है कि पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 पाई बाई 8 को सीधा सवाल, अगर मान लो 2 प्लस 3 अगर 5 है तो ऑब्वियसली 5 माइनस 3 क्या होगा, तो 2 ही होगा। अगर दोनों का सम पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 कितना होगा, पाई बाई 8। पाई बाई 8 ही ना होगा। चेक कर लो तुम लोग, अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं ये क्या कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन क्या है चेक कर लो। देखो पाई बाई 8 आ रहा है, मतलब क्या मैं साइन 3 पाई बाई 8 की जगह पे क्या मैं cos पाई बाई 8 लिख सकता हूँ? ओके, तो मैंने क्या किया देखना एक बार, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 8। नाउ टेल मी व्हाट इज sin स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 8? 1। देखो अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो ये सब बहुत बहुत आसानी से हो जाए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सब तुम बहुत अजीब तरीके से करोगे। यूजुअली बुक्स में ये सारे सम्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे और बहुत लेंथी में दिया जाता है। हम तुमको वो भी समझाएंगे, डोंट वरी, वी हैव टू स्पेंड टाइम। ये मतलब अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का रियल एंड ये टॉपिक ही है जिसमें मैं थोड़ा कंसेप्ट वाला पार्ट बताऊंगा। इसके बाद वही है जो मैंने लास्ट डे होमवर्क दिया था, 3-4 डाउट आएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट व्हिच इज लेफ्ट ओनली। तो ध्यान समझना है। तो अब देखो यही चीज को अगर मैं सपोज I think I don't want to now I mean move ahead with this particular question once again. तुम लोग ये दोनों एग्जांपल्स को कॉपी करो। मैं इसका और एग्जांपल्स लेता हूं, पहले कॉपी करो। See everyone, the next question I am giving is sin square pi by 12 plus sin square 5 pi by 12 और अगेन इसको मुझे इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो तुम लोग इसको खुद से एक बार ट्राई करके देखो। तो ये एक बार खुद से ट्राई करके देखो, ये सेम लॉजिक से पहले एंगल्स को ऐड करके चेक करो। 1। सो नोट डाउन हियर व्हाट वी फाइंड, ये दोनों एंगल्स का सम हम लोगों ने चेक किया, तो ये दोनों एंगल्स का सम कंप्लीमेंट्री आ रहा था। तो मैं सारे यहाँ पे कंप्लीमेंट्री वाला जो रिलेशनशिप है वो यूज कर सकता हूँ। क्या है कि मैं sin 5 पाई बाई 12 ले सकता हूँ और मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 minus 5 pi by 12 because you know that cos 90 minus theta is equals to sin theta। और हमको ये भी पता है कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि 90 minus 5 pi by 12 से आंसर pi by 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। देखो एक बार सिंपलीफाई करके चेक कर लो। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको sin स्क्वायर pi by 12 plus cos स्क्वायर pi by 12 लिख दूंगा and this is equals to how much? ऑलराइट, अब मैं एक काम करता हूँ, ये सब को थोड़ा सा चेंज करके मैं देखता हूँ और मैंने इसका पावर को 4 दे दिया कर दिया। अब एक बार सॉल्व करके दिखाओ। नाउ सॉल्व दिस। यहाँ पे पावर स्क्वायर नहीं है, 4 है। अब बताओ, अब ये सॉल्व करके दिखाओ। नाउ नोट डाउन एवरीवन। सबसे पहला चीज में जो भी पावर, इतना भी कॉम्प्लेक्स पावर, उससे हमको मतलब नहीं है, पहले एंगल्स का सम चेक करें। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एंगल्स का जो सम है वो पाई बाई 2 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी एक फंक्शन को अगर हम चूज कर ले, सो यू नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या होता है कि sin थीटा अगर है सो दिस इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। और इनको पता है कि पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 12 क्लियरली वो पाई बाई 12 भी होगा। एलसीएम लेके भी सॉल्व करें। ऑलराइट, अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर पाई बाई 12 का होल स्क्वायर। देखो तो एक बार, क्योंकि तुमको पता है कि पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, और इसको भी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाई 12 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब एक बात बताओ, हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला दिया था, फिर रिमेंबर a plus b whole square minus 2. एक होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं? The first वाला. First वाला। The first वाला. क्योंकि फॉर्मूला में आ जाएगा ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab।
अब बताओ व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? 1. तो 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी है। सर आंसर 3/4 आएगा 1/2। देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे स्क्वायर है, देखो एक बार ध्यान से, स्क्वायर है तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये हाफ। अब बताओ मुझे एक बात सबको, ये वाले पार्ट को क्या मैं लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर sin स्क्वायर पाई बाई 12 cos स्क्वायर पाई बाई 12 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 sin पाई बाई 12 into cos पाई बाई 12 का होल स्क्वायर। प्लीज चेक बॉक्स। यस सर। देखो 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख दिया, ये हो गया sin स्क्वायर पाई बाई 12 cos स्क्वायर पाई बाई 12, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 sin पाई बाई 12 cos पाई बाई 12 का होल स्क्वायर और बाई w, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 sin पाई बाई 12 into cos पाई बाई 12 का होल स्क्वायर। Now tell me everyone, what is the formula of 2 sin A into cos A? sin 2a। 9 2 Sin 2A। अगर sin 2A होता है तो तुम लोग ये बताओ मुझे कि 2 sin pi by 12 into cos pi by 12 कितना होगा? sin 30 डिग्री। 30। So sin square 2a. Sin, I mean हाँ square है तो ठीक है। Now what is 2 sin pi by 12 into cos pi by 12? It is sin 2 into pi by 12. So what is 2 into pi by 12? 2 into pi by 12 is pi by 6 और इसका होल स्क्वायर है तो sin। समझ में आया तो बात? समझ में? अगर मैं इस पूरा को a अज्यूम कर लूं, इसको a अज्यूम कर लूं, so what is 2 sin a into cos a? It is sin 2 times a, 2 times this angle. So what is 2 times pi by 12? It is pi by 6. अब बताओ मुझे कि sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो सकता है? half 1/2. हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 into हाफ कितना हो जाएगा? 1/8। एलसीएम लेंगे तो 7/8। आंसर इज 7/8। है ना? अच्छा सब, तो ये हम लोग ने देखा कंप्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी लगा के कितना इजीली हम लोगों ने सम को कर दिया। और यही चीज का जो कॉम्प्लेक्स मेथड है वो हम अभी नहीं, पहले हम एक बार सम 8 का नंबर बी बता दे पहले। I want your attention here. Now let us say one example. Suppose we have sin square pi by suppose 8. Suppose sin square pi by 8 plus cos square 7 pi by 8. Please, I want your attention here. I want everyone to pay attention here. We have sin square pi by 8 plus cos square 7 pi by 8. अब एक बात बताओ, ये दोनों एंगल्स को ऐड करके क्या 180 डिग्री 180 डिग्री Pi. अब सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री बना हम यूज करें। मतलब अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को ये चीज पता है ना cos 7 pi by 8, मतलब हमको पता भी चला कि pi by 8 और 7 pi by 8 को ऐड करके आंसर pi आ रहा था, पता चला हमको। तो एक बात बताओ, क्या मैं 7 pi by 8 को 7 pi by 8 को ध्यान देना एक बार, क्या मैं पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ? पाई माइनस पाई बाई 8। ये कब मैंने बताया था बताओ? तो ये याद है तुम लोगों को? याद है तुम लोगों को कौन से नंबर में मैंने बताया था? 7 या 8 में बताया था, याद है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में 7 या 8 नंबर में बताया था, जब याद है वो चीज बताया था मैंने कि प्लस माइनस थीटा 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 इवन पाई ऑड पाई। यू रिमेंबर दिस पार्ट? इवन पाई और पाई, याद है ना ये चीज? और याद है मैंने बताया था कि तुम लोग को इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर दैट? अब बताओ मुझे cos 7 pi by 8 को मैं पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ? चेक करके देखो, चेक करके देखो, पाई माइनस पाई बाई 8 को सॉल्व करके क्या आएगा? क्लियरली 7 pi by 8 आएगा। खुद दिमाग लगाओ, पाई माइनस पाई बाई 8 को सॉल्व करके क्या आएगा? 7 pi by 8 ही तो आएगा। तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं। अब बताओ व्हाट इज cos pi minus theta? अब बात ये है कि आंसर तो cos थीटा होता है, अब हमको सिर्फ देखना होता है कि यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है। पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 4 पाई माइनस 4 पाई प्लस
3 पाई माइनस 3 पाई प्लस ये सब 7 पाई 8 पाई ये सब में रख के सम करने का फायदा क्या होता है कि सिर्फ मुझे क्वाड्रेंट चेक करना होता है कि नहीं? बताओ, क्वाड्रेंट चेक करना होता है कि नहीं? क्योंकि फंक्शन सेम रहता है। डू यू रिमेंबर दैट? क्वाड्रेंट चेक करना होता है। तो एक बात बताओ, ये ऑड पाई, पाई का मतलब हुआ 1 पाई, तो 1 पाई का मतलब ऑड पाई। ऑड पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ था? देख के बताओ। सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में Second. कॉस फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव एक बात बताओ फिर, क्या मैं cos 7 पाई बाई 8 के जगह पे माइनस cos पाई बाई 8 में लिख सकता हूं और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ, किसी को कोई दिक्कत ना? इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 8। अब बताओ, व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? 1। अब पता है ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? तुम देखो 7 जो 8 नंबर है ना, ये सारा सम जो है ना एक एक लाइन में मतलब नॉट एक लाइन, मतलब क्लियर बहुत हो जाएगा। देखो कैसे हो, ध्यान 8 का नंबर एक बार देखते हैं। देखो सबको ये चीज क्लियर, देखो ये मैंने बोला ना, मैं जिस हिसाब से बेसिक्स में चल रहा हूँ कहीं रश नहीं किया मैंने बेसिक्स में। तो अगर तुमको वो सारी चीज होमवर्क अभी तक करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। और रिविजन में जो दे रहा हूँ ना मैं, तुम भले क्लास अटेंड मत करो और तुमको अगर आता है ना तो तुम रिवीजन वाला वर्क को एक बार घर पे रिवाइज, मतलब तुम वीडियो देख करके और वो सम को वापस से घर पे कर लो। मैं बता रहा हूँ बहुत फायदा होगा। एक बार में ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी अच्छा नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट 2-3 टाइम्स एट होम। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये वाला बहुत अच्छे से देखना होगा, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग को शो करना है कि 2 के बराबर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने 2-2 वाला देखा, यहाँ पे 4 है, तो 4 है तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा 2 का सम सेम है, और सेम है वो भी किसका सम 90 है किसका सम 180। बताओ कौन कौन सा किसको लेने से तो पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8। इन दोनों को लेने से क्या आ रहा है बताओ? 7 बाई 8 को ऐड करने से पाई आ रहा है, पाई इन दोनों को ऐड करने से भी पाई आ रहा है। पाई। इन दोनों का पेयरिंग करते हैं, एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो और इसको एक ब्रैकेट है। और पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 को ऐड करके आंसर पाई आ गया। तो एक काम करते हैं, दोनों में से इसको सेलेक्ट करते हैं, cos 7 पाई बाई 8 स्क्वायर छोड़ दो, और मैं 7 पाई बाई 8 को लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 8 चेक कर लो, ठीक है? तो क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 8 को अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7 पाई बाई 8। अब बताओ ये होगा क्या? cos पाई बाई 8 ऑड पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें cos क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं इस जगह पे ये हो गया cos स्क्वायर पाई बाई 8 और इस जगह पे माइनस cos पाई बाई 8 का मैं होल स्क्वायर लिख दूं ब्रैकेट में। अब इन दोनों में से एक को देखो, जैसे कि हमको पता है कि 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 को ऐड करके क्या रहता है? तो पाई। तो मान लो cos 5 पाई बाई 8 को लेते हैं, तो क्या मैं cos 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं? चेक कर लो कैसे लिख 8 pi minus 3 pi becomes 5 pi. Now what is cos pi minus theta? It is minus cos theta. I hope you are not confused like why it is minus cos theta. You all know this. तो मैंने क्या किया? cos square 3 pi by 8 इस जगह पे लिख दिया minus cos 3 pi by 8 का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया cos स्क्वायर पाई बाई 8. व्हाट इज माइनस cos पाई बाई 8 का होल स्क्वायर? और ये हो गया cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8. हुआ ना? क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? देखो देखो, व्हाट इज x प्लस x? 2x. x plus x is 2x. अब एक दोनों में से कॉमन क्या है? 2. तो बच जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8. अब बताओ मुझे सब कोई कि अब मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मतलब क्या मैं लॉजिक यूज करूंगा बताओ. सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला. Complementary angle. वेरी गुड. दोनों का सम क्या है बताओ. तो पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 को ऐड करके 5 by 2. 3 पाई बाई 8 को ऐड करके पाई बाई 2 आ रहा है. तो क्या मैं किसी एक को एनीवन, देखो यहाँ पे मत लिख देना वैसे पाई माइनस हुआ था. कॉम्प्लीमेंट्री अलग होता है, सप्लीमेंट्री अलग होता है. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? cos थीटा को क्या लिख देंगे हम? sin 90 माइनस थीटा. देखो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा? sin पाई बाई 8 आ जाएगा. ये जो लॉजिक है ना, इसको अगर तो मास्टर कर लिया, बहुत सारा सम एक एक लाइन में बन जाएगा. What is cos square theta plus sin square theta? It is 1. 1 into 2 is 2. So everyone note down, our today's class will be all about 8 only and 9. You'll find that 8 and 9 करने के बाद तुम लोग का शायद टाइम ना भी बचे और कुछ करने के लिए, because 8 and 9 खुद में एक बहुत ही बढ़िया सम है. जो तुम लोग बुक में अगर देखोगे तो ये सम का बहुत ही अननेसेसरी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वेज दिया रहता है, बट हम लोग बहुत ही अलग तरीके से करेंगे. ओके, वी विल डू इट इन अ वेरी एंड इन डिफरेंट वे, एंड जिससे होगा तुम लोग देखना उससे बहुत इजीली वो सम हो पाएगा. तो लास्ट डे भी मैंने बताया था कि दो चीज बताया था, एक कॉम्प्लीमेंट्री बताया था और एक सप्लीमेंट्री वाला कुछ बताया था मैंने. ठीक है, तो एक बार मैं नंबर 8 का बी में बता दूं. ठीक है, ध्यान रखना. सो 8 का क्वेश्चन नंबर बी देखना है. So I am taking LHS where you have sin pi by 8 whole to the power 4 plus sin 3 pi by 8 whole to the power 4 sin 5 pi by 8 whole to the power 4 plus sin 7 pi by 8 whole to the power 4. और ये लोग को सॉल्व करके 3/2 लाना है. ऑलराइट एवरीवन, इसको सॉल्व करके हम लोग को 3/2 लाना है इसका रिजल्ट. तो एक बार ध्यान से सबको देखना ये सम को पहले. नाउ व्हाट यू आर फाइंडिंग कि यहाँ पे अपने लोग चार, याद है ना लास्ट डे भी हम लोग इस तरह का कुछ सम्स किया था. यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स है. तो एक बात बताओ, याद है लास्ट डे मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ कैन यू टेल मी, वी हैव गॉट 1 2 3 4 फंक्शंस. क्लियर? नाउ कौन से दो फंक्शंस में अगर हम एंगल्स को ऐड करें तो उसका रिजल्ट या तो π/2 आना चाहिए या फिर पाई आना चाहिए, मतलब जिसका यार मतलब या ये सोचो कि दोनों का जो एंगल्स का सम सेम आना है. कौन से दो एंगल्स को ऐड करके? सर फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड और थर्ड. So we are finding that π/8 plus 7 π/8 को ऐड करके पाई आ रहा है, and 3 π/8 plus 5 π/8 को ऐड करके आंसर पाई आ रहा है. और हम लोग जो भी मेथड कर रहे हैं ना, you won't believe, मैं एक बार बताता हूँ, तुम देखना जो स्कूल लेवल के बच्चे ये मेथड जल्दी क्लिक नहीं करते दिमाग, ये उसी का क्लिक करेगा जो लोग स्टार्टिंग से पूरा जिसका कंसेप्ट क्लियर हो और जो भी मेथड हम बताने वाले. नहीं तो पता है कौन सा मेथड करेगा, हम इसके बाद बताएंगे आज वो मेथड दूसरा होगा. तो ध्यान रखिएगा. सबसे पहला चीज, इन दोनों एंगल्स को ऐड करके आंसर पाई आ रहा है. तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों फंक्शंस को मैं एक ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दूंगा.
और ये दो फंक्शंस को एक ब्रैकेट कर दो। ऑलराइट, नाउ सी, तो ये दोनों का एंगल का सम पाई आ रहा था, तो मैं एक को सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि मान लो sin 7π/8। हमको पता है कि π/8 प्लस 7π/8 is equals to pi, all right, is equals to pi. So can I replace 7π/8 with pi minus pi/8? Can you tell me everyone? Can I replace 7π/8 के जगह पे क्या हम लोग pi minus pi/8 लिख सकते हैं? एक बार चेक करके देखो। Yes, sir. क्योंकि pi minus pi/8 को सॉल्व करके, pi minus pi/8 को सॉल्व करके जो आंसर है वो क्या है देखो तो एक बार, you are getting 7π/8. Are you understanding? So I am replacing 7π/8 with pi minus pi/8. 7π/8 को हम लोग pi minus pi/8 से रिप्लेस करें। Now everyone tell me, देखो याद होगा तुम लोगों को मैंने एक टॉपिक कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, याद है? प्लस माइनस प्लस माइनस, थीटा था, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। ये था इवन पाई प्लस थीटा, ये था इवन पाई माइनस थीटा, ये ऑड पाई माइनस थीटा था, और ये ऑड पाई प्लस थीटा था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो इसमें याद होगा मैंने बताया था कि पाई वाले में रख के फायदा क्या होता है कि ये होता है कि कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होता, बस हमको इसमें देखना होता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो बता सकते हो तुम लोग ऑड इनटू पाई मतलब 1 इनटू पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? बताना है, बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग sin 7π/8 के जगह पे sin 7π/8 के जगह पे हम लोग sin π/8 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। अब हम लोग देखते हैं ये sin 3π/8 और sin 5π/8, ये जो दोनों जो एंगल्स है, जिन दोनों को ऐड करके आंसर क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3π/8 एंड 5π/8 को ऐड करके आंसर पाई आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, चूज कर लेता हूं 5π/8। ठीक है, अब मैं 5π/8 को क्या मैं लिख सकता हूं? पाई माइनस 3π/8। चेक वंस, प्लीज टेक एलसीएम एंड चेक वंस, check everyone. 8π minus 3π becomes how much? 5π/8. Are you understanding my point? हम लोग 5π/8 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? pi minus 3π/8. Please everyone calculate and check once. देखो, और सिंपल सा बात ये है कि 5π/8 अगर मान लो x plus y थीटा के बराबर है तो y क्या होगा? थीटा माइनस x होगा कि नहीं? तो वैसे ही 3π/8 plus 5π/8 अगर पाई है तो 5π/8 कितना होगा? It is pi minus 3π/8. Alright everyone, अब देखो ध्यान से। नेक्स्ट, अब इसका जो रिजल्ट है ये ऑड पाई माइनस थीटा है। ऑड पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, और इसका फायदा ये होता है कि हम लोग को फंक्शन चेंज नहीं करना होता है। डू यू रिमेंबर ना क्यों चेंज नहीं करना होता है? क्या याद है ये चीज, चेंज क्यों नहीं करना पड़ता? सर होम क्वाड्रेंट ही रहता होगा। नहीं, क्यों फंक्शन साइन से कॉस नहीं बदलता है? या यहाँ अगर कॉस होगा तो साइन कि पाई हमेशा आपका इवन ही रहेगा 90 into 2। वेरी गुड, बिकॉज अगर हम पाई को डिग्री में कन्वर्ट करके करें तो पाई जो है वो 180 जो है वो हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, वो हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ 90। मतलब पाई को अगर हम 2 into 90 लिख सकते हैं तो 2 पाई को 4 into 90 देखो इवन मल्टीपल। याद है ये चीज मैंने बताया भी था उस समय, 6 into 90 इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो फंक्शन सेम का सेम ही रह जाए। मतलब हम लोग एक चीज तो क्लियर करिए कि हम sin 5π/8 के जगह पे sin 5π/8 के जगह पे हम sin 3π/8 लिख सकते हैं, एंड sin 7π/8 के जगह पे sin π/8 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। I will write this as sin π/8. Please check once. I've replaced sin 7π/8 with sin 5/8. पावर 4 है तो होल पावर 4 लगा दी। ठीक है, पहले ये बताओ सबको कि यहां तक समझ में आया ये नहीं? ये बहुत ही बढ़िया सम है, मतलब वन ऑफ जो बोलते हैं ना क्लास सम में, मुझे ये वन ऑफ द क्लास सम में एक सम लगता है, क्योंकि ये एक सम है जहां पे हम लोग इस चीज को इतना बढ़िया से रिड्यूस करते जा रहे हैं
अगर ये मुझे कंसेप्ट क्लियर ना होता किसी का तो ये इतना बढ़िया से हम कर नहीं पाते। बहुत लंबा, मतलब तुम्हारे पेज में लगभग जो है ना, तुम्हारे बड़ा कॉपी का, बड़ा वाला जो क्लासमेट का कॉपी होता है वो 2 पेज 3 पेज 2.5 पेज बढ़ जाएगा और फिर भी बहुत ज्यादा कम पेज नहीं। अब देखो एक बात बताओ, इन दोनों को ऐड करके क्या है, ठीक है, और ये दोनों को ऐड करके, ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। अब मुझे बताओ एक बार, अभी हमने देखा कि θ1 + θ2 पाई आ रहा है। अब हम देख रहे हैं, अब बताओ तो मुझे ये एंगल्स का सम क्या है, देखिए बताओ, चलिए 90 डिग्री। π/2। देखो 90 डिग्री है ना। जैसे मान लो अगर सपोज ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे मान लो इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन होता है, लेट्स सी, सर इसको हम लोग cos to the power 4 pi/8 लिख सकते हैं। हम बता रहे हैं, सपोज इस तरह का सिचुएशन होता है, मान लो ये, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है तो किसी एक को, किसी भी एक को हम लोग, जैसे sin 40 डिग्री को हम लोग cos 90 डिग्री - 40 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, तो 90 - 40 क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। और जब हम sin 40 डिग्री के जगह पे हम लोग cos 50 डिग्री रिप्लेस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ठीक वैसे अगर दोनों का सम जैसे कि π/8 और 3π/8 को ऐड करके अगर आंसर π/2 आ रहा है तो हम क्या sin 3π/8 के जगह पे लिख सकते हैं cos 90 - 3π/8। प्लीज चेक व्हाट इज cos π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। सो व्हाट इज cos 90 डिग्री माइनस थीटा, व्हाट इज cos 90 डिग्री माइनस थीटा, टेल मी, रिपीट, बताओ। π/8। sin थीटा, आई रिपीट, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज हाउ sin थीटा। अब एक काम करो, π/2 और 3π/8 को सिंपलीफाई करो। π/2 और 3π/8 को अगर हम सिंपलीफाई करें, एलसीएम लेने के बाद π/8 आ रहा है, चेक करें, ठीक है। तो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इस नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा cos π/8 होल टू द पावर। अब पता है ये सम इतना बढ़िया सिचुएशन पे आ चुका है कि हम लोग इसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि ये जो भी कैलकुलेशन किया मैंने राइट साइड में, अपने कॉपी में रफ कॉलम बना करके इस कैलकुलेशन को रफ में लिखो और ये पार्ट को कॉपी करो लिखो। अब बस एक फॉर्मूला अप्लाई करें, तो यहां तक फटाफट कॉपी करो सब। सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a² + b²? इट इज a + b होल स्क्वायर -2ab और a - b होल स्क्वायर + 2ab, दो फॉर्मूला, ठीक है। अब बताओ मुझे, मैं इसमें क्या करूंगा देखना है, ध्यान देना। I will write sin π/8 whole to the power 4 as sin square π/8 whole square, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है 4 आ जाएगा, और इसको मैं लिख रहा हूं cos square π/8 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ओके। अब देखो मैं यहां पे अब नेक्स्ट क्या करूंगा, a² + b² का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। So what is the formula of a² + b²? Either I can apply first or second, but you tell me यहाँ पे कौन सा बेटर होगा अप्लाई करना, पहला या सेकंड वाला, बताओ। फर्स्ट वाला। वेरी गुड, बिकॉज अगर हम फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा पता है, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -2ab। इससे फायदा क्या होगा कि sin² थीटा + cos² थीटा 1 हो जाएगा। लेकिन अब तुम लोग ये स्टेज में पहुंच चुका है कि ये भी अप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा सब। लेकिन क्यों हम लोग इतना करें, जब हमको दिख रहा है डायरेक्ट sin² थीटा + cos² थीटा 1, तो हम लोग डायरेक्ट यही अप्लाई करते हैं। सो sin² थीटा + cos² थीटा इज 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखो मैं 2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूं, 2 1 2 2 2 4 sin² π/8 cos² π/8। ऑलराइट, अब आगे देखना एक बार,
इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, इन दोनों में से सॉरी हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ के लिए छोड़ते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब बता सकते हैं तुम लोग ये वाले पार्ट को कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, कोई बता सकता है? लास्ट स्टेप है, बस एक ही लॉजिक, एक ही कंसेप्ट बाकी है, इसमें बस जो बता दिए हो गया, सब खत्म हो जाएगा। ये स्टेप इसको साइन कॉस ए वाला फॉर्मूला से, कौन सा? साइन 2a वाला से। वेरी गुड। इसको हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 sin पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर 4, sin पाई बाई 8 का होल स्क्वायर sin स्क्वायर पाई बाई 8, cos पाई बाई 8 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बाई 8। नेक्स्ट तुम लोग ये बताओ कि 2 sin पाई बाई 8 इंटू cos पाई बाई 8 रिड्यूस होके क्या होगा बताओ? पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4। ठीक है, फिर से सुनना एक बार। You know that 2 sin a into cos a becomes sin 2a. So 2 into pi by 8 becomes pi by 4. And what is the value of sin pi by 4? 1 by root 2. 1 by root 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 by 2. और इसमें अगर हम सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके तो आंसर 3 by 2 है। And this is what you have to prove with this check box. ठीक है, यही हम लोग को इस सब में प्रूव करना है। देखो ये लाइन मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। ये हो गया तुम्हारा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये जैसा वैसे मैंने लिख दिया। आगे 2 था तो 2 को मैंने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया और 4 sin स्क्वायर पाई बाई 8 इनटू cos स्क्वायर पाई बाई 8 को 2 sin पाई बाई 8 इनटू cos पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, sin पाई बाई 8 का होल स्क्वायर sin स्क्वायर पाई बाई 8 और इसका होल स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बाई 8। तो बताना एक बार 2 sin a इनटू cos a कितना होता है? 2 sin a sin 2a into cos a becomes sin 2a. Sin 2 into pi by 8 will become pi by 4. So, and this is what we have on the right hand side. Now I want everyone to try the same way sum number C. एकदम सेम है देखो, और तुम ये सम अगर खुद से करेगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। So if you are doubting this sum, I am showing this sum here, everyone note down. So now it is very much clear that since the sum of these two functions, the sum of the angles of these two functions is complementary, so I am making a pair, I am separating them, I am keeping in one bracket. इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखें। We are finding that इन दोनों को ऐड करके एंगल पाई आ रहे हैं, तो मैं cos 7 पाई बाई 8 को मैंने लिख लिया और 7 पाई बाई 8 के जगह पे मैं पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। चेक कर लो इसको। अब देखो cos पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ऑड पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और ये cos का cos ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इस जगह पे मैं माइनस cos पाई बाई 8 लिख के उसकी पावर पे 4 दे दूंगा, क्योंकि पावर पे 4 है, और उसके बाद यहाँ पे cos 5 पाई बाई 8 के जगह पे 5 पाई बाई 8 के जगह पे मैं, क्योंकि दोनों को ऐड करके एंगल पाई आ रहा है, तो मैं 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। चेक कर लो, बिकॉज 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 इज इक्वल टू पाई, तो क्या मैं 5 पाई बाई 8 के जगह पे पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इसको सॉल्व करके हम लोग कुछ डिफरेंट नहीं किया, इसको सॉल्व करके यही आ रहा है। देखो अब ये भी हो जाएगा माइनस cos 3 पाई बाई 8, माइनस cos 3 पाई बाई 8 होल टू द पावर 4। नेगेटिव नंबर का पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। So I don't think it is different from the previous sum. It is just this copy paste of the previous question. The only difference which I find here is कि ये जो है cos में है और पिछले वाला sin में था, और कोई difference नहीं। I'm sorry. This is 3. Okay, I just made mistake. 3. अब देखो इन दोनों को ऐड करके आंसर 2 cos pi by 8 to the power 4। ठीक है,
दोनों में से 2 कॉमन ले लो। अब देखो एक बार, दोनों का एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री है, चेक कर। अगर दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या मैं cos 3π/8 की जगह पे sin 90 माइनस 3π/8 लिख सकता, ठीक है, बिकॉज दोनों का सम π/8 और 3π/8 को ऐड करके आंसर π/2 आ रहा है। सो यू नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। इसको मत कंपेयर करना इस लॉजिक से कि सर आपने तो यहाँ पे पाई के 7π/8 की जगह ये लगा दिया, आप यहाँ वैसे क्यों नहीं लॉजिक लगाए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि cos थीटा sin 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अब एक बार इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके क्या आएगा π/8, मतलब हम cos 3π/8 की जगह पे sin π/8 लगा सकते हैं। Now do you find any difference in this sum after this line and the previous one? I don't find any difference. Same है, यहाँ पे भी वही था, वहां पे भी वही, एक्सप्रेशन सेम आया, आंसर लास्ट में क्या आएगा 3/2 तो आएगा। Okay, I'm solving after this line because same ही है, नंबर जो B में था वैसे ही B। So I want your attention here. Everyone note down. Now this is completely different. I mean this sum is not same as A, B and C. A, B and C all 3 questions were the same time. The reason behind this was क्योंकि कोई ना कोई 4 में से 2 एंगल्स का सम या तो 90 हो रहा था मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर 180 हो रहा था दैट इज सप्लीमेंट्री, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। So everyone note down how to solve this sum, और हमको शो करना है 3 बार। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, 3 फंक्शंस वो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाला कांसेप्ट नहीं लगता, तो देखो ध्यान से एक बात बताना, 1 + cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है बताओ 2 cos square a। 2 cos square। तो एक बात बताना, तो cos square a का फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा cos square a, अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो 1 + cos 2 by 2. 1 + cos 2 times angle a, let's say this way, वो एक ही बात हुआ 2a 2 times, मतलब मैं बस बताने के लिए a का 2 times यहाँ पे आएगा और नीचे by 2 होल थिंग by 2। सो टेल मी एवरीवन, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, cos square a की जगह पे ये मैं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे पावर प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम पावर क्रिएट कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पावर नहीं होता ना, तब तो तुम लोग ये सम को हंसते खेलते सबको सॉल्व कर देते। मान लो मैंने यहाँ पावर हटा दिया, कुछ सम में बचा, कुछ भी नहीं बचा सम। अगर मैं पावर हटा दूं तीनों टर्म में से तो कुछ बचा ही नहीं सम में। अब ध्यान से नोट करना, अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि cos square a + 120 डिग्री को क्या लिखोगे, अगर तुम a को 2a लिख दिया तो a + 120 क्या होगा बताओ, सोच के बताओ आराम से। सर 2 ब्रैकेट 2a में +120 2a + 2a 240। + 240 नहीं पूरा मुझे बोला नहीं, 1 तो तुम लोग खुद ही तुम लोग अपने आप सर 1 + cos 1 2 + ब्रैकेट cos में 2a a + 120/2। 1 तो बोलना पड़ेगा ना, 1 + cos, इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें 2a + 240। और ये पूरा चीज को नीचे 2 से डिवाइड करें, कोई दिक्कत किसी को कहीं? a becomes 2a, so a + 120 is the entire angle, it will become what, twice of a + 120, that is 2a + 240. So what will be cos square a - 120 degree? 1 + cos 2a - 240 divided by 2। ऑलराइट, बस कुछ नहीं, बस हम इतना नहीं लिखेंगे, बाकी तुम लोग सॉल्व करो। cos square a की जगह पे हम लिखेंगे 1 + cos 2a होल थिंग बाय 2। इस जगह पे लिख देंगे हम 1 + cos 2a + 240 डिग्री होल थिंग बाय 2। इस जगह पे लिख देंगे 1 + cos 2a - 240 डिग्री होल थिंग बाय 2। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व तुम लोग करें। एलसीएम लेंगे अगर तो 1 + cos 2a + 1 + cos
2a plus 240 degree plus 1 plus cos 2a minus 240 degree. So 1 plus 1 plus 1 becomes 3. So we have 3 plus cos 2a plus cos of 2a plus 240 degree plus cos of 2a minus 240 degree. होती डिवाइडेड। अब बता सकते हैं सब स्टेप के बाद क्या करना है? मैं नहीं करने वाला, बताओ तुम लोग क्या करना चाहिए। फॉर्मूला लगाना है cos of a plus ba minus। तो चलो तुम लोग कंप्लीट कर लीजिए, जिससे हुआ कंप्लीट, ठीक है? जिससे कंप्लीट नहीं होगा मैं डेफिनेटली सॉल्व कर दूंगा। ट्राई। फॉर्मूला बहुत है तुम्हारे पास, बहुत सारा फॉर्मूला है, यू कैन अप्लाई एनी। सर हम लोग 2a plus 240 a में आके अटक जा रहा है। See, please check in your copy the formula of 2 cos a cos b. It is cos of a plus b plus cos of a minus b. Can you see? Can you see in your copy this formula? yes sir So cos of a plus b plus cos of a minus b is 2 cos a into cos b. So it is 2 cos a into cos b. Any doubt anyone? Check once. देख लो कोई दिक्कत? 2 cos a into cos b is cos of a plus b plus cos of a minus b. तुमको ये दिमाग में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। cos of a plus b फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड कर दो, कंपाउंड कर दो। यहाँ पे cos of a minus b लगा के एक्सपैंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कोई भी लगाओ ना, बहुत सारा दिमाग में आ रहा होगा, जो पहले दिमाग में क्लिक कर रहे हो वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर में कट के यही आएगा, देखो उसमें भी कट जाएगा टोटल, और कट के यही है। अब बताना सबको मुझे कि cos 120 का वैल्यू 240 का वैल्यू कितना होता है? बोलो। minus1/2 cos 60. माइनस cos 60, वेरी गुड। एंड माइनस cos 60 मतलब माइनस हाफ, ठीक है? cos 240 का मतलब हो गया cos 2 into 90 plus 60. 2 into 90 plus 60 थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। इवन है तो cos मतलब डायरेक्ट में हाफ, माइनस हाफ। तो cos 240 की जगह पे डायरेक्ट माइनस हाफ। एक दो लाइन में बचा ही उसमें, कुछ बचा ही नहीं। अब देखो 3 बचा प्लस cos 2a बचा प्लस इनटू माइनस, माइनस हो जाता है। 2 कैंसिल हो गया क्योंकि एंगल का पार्ट नहीं है, ये एंगल का पार्ट नहीं है। cos का एंगल तो 2a है, उसको कोई चर्चा नहीं कर सकता, इसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते, ये अलग है। प्लस इनटू माइनस बिकम्स माइनस, 2 gets cancelled and we have cos 2a. Anything is left now? Okay, everyone note down 9 का नंबर A एंड B, दोनों क्वेश्चन लिखा। ओके, you are given 7a equals to 5 and you have to show that cos a into cos 2a into cos 3a equals to 1/8, और नंबर बी है cos pi by 9 cos 2 pi by 9 cos 3 pi by 9 into cos 4 pi by 9 equals to 1/2 to the power 4। अब ध्यान से देखना है ये सम देखो, और ये वाला सम देखो, ये वाला देखो। डिफरेंस इतना ही मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 5/9 है, और वो जो हमने पहले किया वहां पे 20 डिग्री था। 5/9 मतलब 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, और कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम में बहुत लोग ये सम देख के घबरा जाएगा, पता है क्या कि पाई में क्या करें, कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है, बहुत आसान। अच्छा बताओ तो तुम लोग को जो जितने भी मेथड्स मैंने बताया था उनमें सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन था? इतना याद है मुझे, साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था एक मेथड में। हाँ सर। क्या था बताओ? सर दोनों तरफ 2 से सर 1/2 into 2 करके वो वाला मेथड थी। नहीं, वो तो एक मेथड था, एक और मेथड था ना, याद है? sin 20 by sin 20 से मल्टीप्लाई कर। वेरी गुड, वेरी गुड।
cos 60 का वैल्यू पहले हाफ लगा दो, क्योंकि चारों में cos 60 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है। उसके बाद देखो यहाँ पे 20 का डबल 40 और 40 का डबल 80, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। तो क्या बताया था मैंने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 sin 20 मल्टीप्लाई करो। ये मेथड भी बताया था। So everyone tell me, देखो ये तो हो गया 2 to the 4 sin 20. Now what is 2 sin 20 cos 20? Hurry up. cos 40. Sin 40. Okay. अब यहाँ पे sin 40 cos 40 लिखते हैं। बताओ क्या करें इसके बाद? sin 80. पहले 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 1/8 sin 20 डिग्री। And what is 2 sin 40 into cos 40? sin Sin 80 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वापस से ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो। And now tell me, what is 2 sin 80 into cos 80? Sin 160. Sin 160. Sin 160 को हम लोग रिड्यूस करके 2 into 90 minus 20 लिख सकते हैं। 2 into 90 minus 20 मतलब क्या हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इवन है तो साइन 160 और साइन 20 से कैंसिल हो गया था आंसर इज ऑलवेज 60। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये सम और ये सम में सिमिलैरिटी क्या है? मतलब पता है तुम लोग को ना एक चीज नोट करना होगा। देखो यहाँ पे क्या था, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, यहाँ पे a का डबल 2a और 2a का डबल क्या होना चाहिए था? बताओ, 2a का डबल क्या होना चाहिए था? 4a 4a दिया हुआ यहाँ पे। सर हाँ बोलो बताओ। सर हम लोग cos सर cos 4a minus a ले सकते हैं। कुछ बोल रहे एक बार फिर से। 2a plus a लेके करने से हो ही जाएगा। नहीं सर 4a minus a ले सकते हैं। 4a minus a लेके तो और कॉम्प्लेक्स होगा ना 3a को। थोड़ा ये भी तो तुम लोग देखो, इसको भी तो देखो, इसका भी तो कुछ रूल हो सकता है ना। मुझे चाहिए a का डबल 2a का डबल 4a चाहिए, 4a तो नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है। तो कुछ इसको यूज करके देखो तो तुम सर समझ गया सर। 3a equals to pi minus 4a। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। बस हो गया सब खत्म। 3a की जगह पे क्या हम 3a की जगह पे लिखना ही पड़ेगा cos a। तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि a का डबल 2a, वो पैटर्न के लिए 2a का डबल 4a होना चाहिए। तो ये कुछ ये तो दिया ऐसे कि थोड़ी ना, इसका ऐसा तो नहीं है कि यूज नहीं होगा, यूज तो होने वाला है ना। तो कैसे यूज होगा? हम 3a की जगह पे पाई माइनस 4a लिख सकते हैं, बिकॉज 7a अगर पाई है 7a को लिख सकते हैं 4a प्लस 3। तो फिर 3a क्या हो जाएगा? पाई माइनस 4a। एंड व्हाट इज cos पाई माइनस 4a? बताओ, व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा? बताओ, मैं नहीं बताने वाला। Minus cos 4a। minus cos 4a, that is minus cos a into cos 2a into cos 4a. Now the pattern is matching. a का डबल 40, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, a का डबल 2a, 2a का डबल 4a। कर लेना तुम लोग ये ट्राई, मैं नहीं बताना। ये लॉजिक सफिशिएंट है तुमको इसके आगे प्रोसीड करने की। तो देखो, तो 9 का मैं नंबर 2 बताया, मैंने नहीं कोई बताया, तुम लोग को ये ऑलरेडी किया हुआ है सब एकदम से। ये सब तो मैंने बताया, वापस से रिपीट करेंगे। सो दिस वे एवरीवन नोट डाउन, टुडे आई एम कीपिंग क्लास टिल हियर। नेक्स्ट डे, दैट इज द नेक्स्ट क्लास, आई विल बी जस्ट डूइंग नंबर 17
And after number 17, you'll find that I'll be sharing short videos which you have to watch and 5-5 6 जैसे complete करना है. उसका doubt हम लोग हर एक class में कर लेंगे. Sir, And now we will be starting trigonometry. Okay? Sorry, we will be starting quadratic. So everyone note down. Today we are going to do first of all 10 का number h and 10 का number I first, and then we will move on to number 11. तो एक बार ध्यान से नोट करना, पहले नंबर 10, right? So let me take LHS, where LHS is 1 minus sin 2x divided by 1 plus sin 2x, and we have to show that it is equals to tan square pi by 4 minus x. ये हम लोग को शो करना है, ठीक है? हम लोग को इस ये दिया हुआ है और हम लोग को ये शो करना है. तो ध्यान देना एक बार, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला का एप्लीकेशन करने वाले, ध्यान देना. सबसे पहला चीज साइन थीटा. एक बात बताओ, साइन थीटा को क्या हम लोग cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं हम लोग. सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम लोग. इसको देखना एक बार. हाँ सर. ठीक है. Yes, sir. उसके बाद बताना तुम लोग कि 1 माइनस cos a का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है? 2 sin square a. Absolutely wrong. Please look at your copy and then tell me the answer. At 2 this sin point, square a by 2. it's 2 sin square a divided by 2. I am asking 1 minus cos a. यहाँ a है तो a का आधा क्या होगा, a by 2 होगा ना. यहाँ अगर 2a होता तो 2a का हाफ कितना होगा, a. बट यहाँ पे a है तो a का आधा कितना होगा, a by 2 होगा. So what is 1 plus cos a? It will be 2 cos square a by 2. So these are the three formulas we have to apply in this sum. Okay, ये तीन फॉर्मूला से ये सम कंप्लीट हो जाएगा. तो ध्यान से एक बार नोट करें. सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे साइन को cos में कन्वर्ट करने वाले. So you know that sin theta is equals to cos 90 degree minus theta. Okay, cos 90 minus theta. Cos 90 minus theta is equals to sin theta. Next, what is the formula of 1 minus cos a? It is 2 sin square a by 2. A जो भी है divided by 2 is your result. So let us consider this angle as a. So if I consider this angle as a, can you tell me what is 1 minus cos a का formula? It is simply 2 sin square a divided by whole thing divided by 2. Is this clear to everyone? Please check this formula and try to compare with this. I mean, try to watch this formula properly and see this sum. कि देखो मैंने ये फॉर्मूला ही अप्लाई किया, बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ a है और यहाँ पे a की जगह पे pi by 2 minus 2x है. तो 1 minus cos a will become 2 sin square a divided by 2. And same way, can you tell me what is 1 plus cos a? It is 2 cos square a divided by 2 gets cancelled. देखो what is sin square theta by cos square theta? It is tan square theta. Tan square theta. ठीक है. और क्या मैं इस चीज को देखो एक बार ध्यान से, क्या मैं pi by 2 minus 2x whole thing divided by 2 को pi by 2 by 2 minus 2x divided by 2 लिख सकते हैं हम लोग. pi by 2 by 2 minus 2x divided by 2. So what is pi by 2 by 2? It is pi divided by 4. और ये हो जाएगा x. मतलब ये चीज रिड्यूस होके क्या हो जाएगा? It will be pi by 4 minus x. This is equal to RHS. तो देखो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ तीन फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया, जिसका फॉर्मूला का लॉजिक क्लियर है. और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एंगल कैसे कन्वर्ट होता है, उसको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ.
क्या हम लोग ने अप्लाई किया? सिंपली पहले हम लोग ने अप्लाई किया sin थीटा इज cos 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1 माइनस cos a का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर a बाय 2, ऑलराइट, a बाय 2। तो देखो ध्यान से यहाँ पे a की जगह पे ये है, देखो ये, सो 1 माइनस cos a is 2 sin स्क्वायर a divided by 2 is the angle part, ये एंगल पार्ट है a divided by 2। तो a यहाँ पे pi by 2 minus 2x है, so a divided by 2। What is 1 plus cos a? It is 2 cos square a divided by 2 again. 2 gets cancelled and we are finding that sin square theta by cos square theta is equals to tan square theta। इसको रिड्यूस कर दिया, ये रफ में शो किया मैंने, तो इतना। This is what we have to do. You copied on this sum and then we will start now. One more sum I will do, I mean, is number I, because मुझे लग रहा है कि ये sum बहुत लोगों का डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने ये बता दिया। ओके, कॉपी फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर I देखना एक बार। See, let me take LHS, which is tan 4 theta, and we have to show that it is equals to 4 tan theta in the bracket 1 minus tan square theta divided by 1 minus 6 tan square theta plus tan theta whole to the power 4। ये हम लोग को शो करना है, तो ध्यान से एक बार सबको नोट करना। सबसे पहले चीज, just note down what is the formula to convert tan function angle into half angle? It is 2 tan a by 1 minus tan square. 1 minus tan square। When you find that जो भी एंगल है वो एंगल हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो भी एंगल है वो उसका हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे मुझे tan का फंक्शन का जो एंगल है वो 4 थीटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हर जगह फंक्शन का एंगल थीटा दिख रहा है, मतलब मुझे पहला स्टेप में 4 थीटा का आधा 2 थीटा लाना पड़ेगा, उसके बाद एक और स्टेप यूज करके मुझे उसको थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को 2 बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 स्टेप में। ओके, पहले अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो ये एंगल जो भी है वो हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रैन टेल मी tan 4 theta, रैन टेल मी tan 4 theta according to this formula will be equal to what? Tan 4 theta according to this formula will be equal to what? Sir, 2 tan 2 theta. Divided by, नीचे भी तो है, So 1 minus tan 2 square theta. tan square 2 theta। Tan square. Yes. Okay, so tan 4 theta will be 2 tan 2 theta divided by 1 minus tan square 2 theta or tan theta whole square, you say. So here we have applied this formula of tan 2. We can note down this formula and write down this formula next। अब मुझे नेक्स्ट दिख रहा है कि मुझे आंसर tan 2 थीटा से tan थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, क्या मैं tan 2a का वापस से फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? Definitely I can apply the formula of tan 2a। So what is the formula of tan 2a? It is 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta। Is this clear to everyone? Check this line। देखो ये 2 जैसा है वैसे रहेगा, और tan 2a में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, tan 2a में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये डिनोमिनेटर में tan square 2 theta को हम लोग tan 2 theta का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। नाउ वी हैव 2 2 जा 4 by 1 minus tan square theta। Now everyone note down, जैसे मैंने यहाँ पे tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई किया, tan 2a का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया मैंने, ठीक वैसे ही मैंने tan square 2 theta को tan 2 theta का होल स्क्वायर लिख के यहाँ पे हम tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। So if I apply the formula of tan 2a, tell me again what is the formula of tan 2a? It is 2 tan theta by 1 minus tan square।
Now everyone just look at this line and tell me if you have any doubt. Tell me. किसी को कोई डाउट है इस लाइन में? देखो मैंने क्या किया, ये लाइन से ये लाइन मैंने क्या किया, मैंने सिंपली tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई किया, which is 2 tan a by 1 minus tan square. ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे 2a अगर a बन जाएगा तो 4 थीटा 2 थीटा बन जाएगा. उसके बाद जहां जहां tan 2 थीटा दिखा वहां पे वापस से मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया. ओके, अब देखो बस सिंपलीफिकेशन का बाकी है. सो इन ऑर्डर टू सिंपलीफाई, ये हो गया 4 tan थीटा by 1 minus tan square थीटा. You keep this as it is. ये इस चीज को जैसे है वैसे रहता है. अब देखो ये डिनोमिनेटर पे 2 tan थीटा का होल स्क्वायर जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा. 1 minus tan square थीटा का होल स्क्वायर. ओके एवरीवन, चेक आउट. 2 tan थीटा का होल स्क्वायर इज 4 tan स्क्वायर थीटा. ये हो जाएगा 1 minus tan square थीटा का होल स्क्वायर. लेट मी टेक एलसीएम. If I take LCM, the simple way to take LCM is इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1 minus tan square थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 tan square थीटा. इस पूरा के डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट. ये एक फ्रैक्शन के ऊपर में भी फ्रैक्शन है और इसके डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है. So you know that it is 4 tan theta by 1 minus tan square theta into reciprocal of this part, इस part का reciprocal, that is 1 minus tan square theta का whole square divided by this expression. Now everyone note down. Suppose मान लो अगर यहाँ पे x square और यहाँ पे x है. So what is x square by x? Clearly it is equal to x. What is x square by x? It is equal to x. X means 1 minus tan square theta. Please check everyone. ये 1 minus tan square theta है और ये 1 minus tan square theta का whole square है. तो यहाँ से अगर एक फैक्टर कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 minus tan square theta. Agreed everyone? Check once. Yes sir. समझ में? Next. डिनोमिनेटर में जो है अब ये बचेगा, ये एक्सप्रेशन. यहाँ पे a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो. ठीक है, क्या चीज? अप्लाई a minus b होल स्क्वायर फॉर्मूला. बिकॉज आई कैन सी द प्रूफ पार्ट कि न्यूमरेटर मुझे जो चाहिए वो आ गया. अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना. a minus b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. tan square theta का होल स्क्वायर, यू नो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. ये हो जाएगा 2 2 4. अब देखो माइनस ये 2 1 जा 2 हो गया. 2 tan square theta minus 2 tan square theta minus 4 tan square theta is equal to minus 6 tan square theta. Now this is equal to RHS. Everyone please copy this. Recording in progress. Everyone note down. Now we will do question number 11 का number 8. Then question number C, D, E as well as F. We have to do all the questions here. Okay. ये सारा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है तो मुझे यहाँ पे सब बताना पड़ेगा. ठीक है, हम टाइम देंगे तुम लोगों को ट्राई करने का. देन वी विल डिस्कस हियर. अगर नहीं हो तो ध्यान देना एक बार पहला क्वेश्चन. So let me take LHS here once. So LHS is cos 4x
और हम लोग को लाना है यहाँ पे 1 minus 8 sin square x into cos square x, ये हम लोग को लाना है. Okay, now I give you all the formulas of cos 2a. The formulas of cos 2a, we know that it is cos square a minus sin square a. It is 2 cos square a minus 1 minus 2 sin square a, 1 minus tan square a by 1 plus tan square. अब देखो ये चार फॉर्मूला में मैं एक को तो बिल्कुल काट दूंगा, मतलब इसको तो दिमाग में लाऊंगा ही नहीं, तो मैं दूर दूर तक देख रहे कि ये आने का कोई संभावना नहीं. अब मुझे ये देख के बताओ तुम लोग प्रूफ पार्ट को कि अगर हमको पहले 1 फिर माइनस चाहिए और उसके बाद ये अगर एक्सप्रेशन चाहिए तो यहाँ पे चार में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? 1 minus 2 sin square. दो कारण है, एक तो 1 माइनस, और दूसरा कारण ये है कि हम लोग को यहाँ पे 4x को कन्वर्ट करना है x में. x में तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते हम लोग, पहले 4x को 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 2x को x में लाना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट चारों में हम प्रूफ पार्ट को अगर देखें तो मुझे थर्ड फॉर्मूला दिख रहा है. ओके, अब बताओ कि cos 4x का अगर cos 2a का फॉर्मूला 1 minus 2 sin square a है, if the formula of cos 2a is 1 minus 2 sin square a, can you tell me what will be the formula of cos 4x? 1 minus 2 sin square 2a. 1 minus 2 sin square 2x here. So let me write down the formula which I have used. Alright everyone, next. अब बताओ नेक्स्ट, इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 1 है, माइनस भी है. अब यहाँ पे चाहिए sin square x into cos square x. एंगल को देखो x चाहिए हम लोग, और यहाँ पे एंगल क्या है 2x है, मतलब मुझे 2x को कन्वर्ट करना पड़ेगा x में. सो एवरीवन टेल मी कि यहाँ पे क्या मैं cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं है. यहाँ पे sin 2a तो ये लगा नहीं सकते. अब बताओ मुझे sin 2a का हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है 2 sin a cos a और एक होता है 2 tan a by 1 plus tan square a. Again I'll be avoiding tan का फॉर्मूला बिकॉज़ हमको आंसर चाहिए sin cos a. तो अगर sin 2a 2 sin a cos a होता है तो बताओ तो एक बार sin square 2x को हम लोग सबसे पहले sin 2x का होल स्क्वायर लिखते हैं, और अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें इसमें, ये फॉर्मूला, तो बताओ तो sin 2x में क्या होगा? बताओ. Sin cos x whole square. Alright, if sin 2a is 2 sin a cos a, then sin 2x will be 2 into sin x into cos x, and you have whole square, तो यहाँ पे हम whole square लिखेंगे. You must write down the formula which you are using so that you can understand at home, or when you are revising you will be able to understand why you have applied, why you have written this step. 2 का square 4 sin square x into cos square x. So we have 1 minus 8 sin square x into cos square x. This is equal to RHS. Alright everyone, please copy down and ask whatever doubts you have. After this sum, you will be trying question number C. क्वेश्चन नंबर सी सबको ट्राई करेंगे, और मैं इतना बता देता हूं कि इस सारे सम्स में लगभग ये सारे फॉर्मूलाज ही अप्लाई होंगे. एक बार ट्राई करके देखो. Recording in progress. क्वेश्चन नंबर 11 का सम नंबर सी. आई एम टेकिंग LHS where you have cos 6x and we have to show that it is equals to 32 cos x whole to the power 6, 48 cos x whole to the power 4 plus 18 cos square x minus 1. ये हम लोग को शो करना. तो ध्यान से एक बार नोट करना सबको. ये शो करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक चीज क्लियर रखना है, हम लोग को आंसर cos x. See everyone please note down. We need answer in terms of cos x. ये एकदम क्लियर रखना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग में. ठीक है, मतलब अगर मान लो हम लोग को ये cos 6x को इस फॉर्म में अगर लाना है, if I want to express cos 6x in terms of this particular expression, I have to keep in mind one thing, and what is that?
that I need answer in terms of cos function, number one, and second thing, I need answer in terms of x. So let me write down all the formula of cos function, जिससे एंगल हाफ एंगल में कन्वर्ट होता है, or 1/3 angle, and not in terms of tan. I'm not keeping in terms of tan. Next, I know the formula of cos 3a, which is 4 cos cube a minus 3 cos. So everyone note down, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? तो एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला को यूज करके क्या कर सकते हैं बताओ? तो यू टेल मी। 1/3 वेरी गुड, 1/3 एंगल, एंगल को 1/3 एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 3a का 1/3 क्या होगा? 1/3 of 3a is what? a. समझ में आया? अब देखो यहाँ पे 6x है, मतलब 6x अगर है तो 6x का 1/3 क्या हो जाएगा? 2x, और अगर हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो 3x। अगर हम मान लो 1/3 एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो आंसर 2x में आएगा, और अगर हम हाफ एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो आंसर 3x में। ठीक है, मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, दोनों वेज हम ट्राई कर सकते हैं। दोनों वेज मतलब ये हुआ कि हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो बताओ तो अगर हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो इन तीनों में सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कौन सा होगा अप्लाई करें? तो सेकंड। तो बताओ तो यहाँ पे क्या लिखे? 2 cos square क्या लिखे? cos square 3a minus 1. 2 cos square 3x minus 1 लिखना पड़ेगा, and write down the reason for this, that cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1. You write down the reason. Okay, next. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, cos square 3x को cos 3x का होल स्क्वायर लिख देना, और उसके बाद 1/3 एंगल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो बताओ तो एक बार cos 3a का फॉर्मूला क्या है बताओ तो? इट्स 4 cos cube a minus 3 cos a, है ना फॉर्मूला? तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? What is the formula of cos 3a? Cos 3x, tell me. It will be how much? 4 cos cube 4 x cos minus cube 3 x cos minus x. 3 cos x. 4 cube x minus 3 cos x whole square. You write down this formula which you are using. Alright, next. अब हम लोग का पूरा काम हो चुका है, बस हम लोग को ये फॉर्म में लाने के लिए इसमें a minus b whole square का फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे a minus b whole square का फॉर्मूला अप्लाई करना है। So what is a minus b whole square का फॉर्मूला? It is a square Square plus b square minus 2. plus b square minus 2ab, 2 into a into b, bracket close, and you already have your minus 1. Okay, इसके बाद minus 1 होता है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, एंड टेल मी cos क्यूब x का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ तो? What is cos cube x का होल स्क्वायर? You know that power Cos to the power 6x. तो ये हो जाएगा cos x whole to the power 6, t का स्क्वायर 9, cos x का होल स्क्वायर विल बी cos स्क्वायर x, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24. What is cos cube x into cos x? Cos x whole to the power 4. Now let me eliminate the bracket, हमको उस फॉर्म में आंसर चाहिए, तो 2 16 जा 32, देखो तो आंसर मिला कि नहीं? चेक बॉक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया देखो यहाँ सबसे पहला स्टेप, जैसे नहीं पहला स्टेप मैंने क्या किया, पहले इसमें मैंने 1 हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद मैंने 1/3 एंगल अप्लाई किया। हाफ एंगल हाफ एंगल अप्लाई किया तो 3x हो गया, और 1/3 एंगल अप्लाई किया तो x हो गया। हम ये उल्टा भी कर सकते हैं, हम पहले 1/3 लगाए और फिर हाफ एंगल लगाए,
ये भी चलेगा, ठीक है, एकदम सही है। मतलब अगर मान लो पहले 1/3 एंगल अप्लाई करें और फिर हाफ एंगल, दोनों से ही आंसर आएगा। अगर देखना चाहते हो एक बार ये कॉपी कर लो, मैं बताया। सर आपने लास्ट में 16 cos square लिखा है आपने। सॉरी जस्ट आई थिंक कुछ गलती हो गया होगा शायद कॉपी में। हाँ ये गलती हो गया, 18 सॉरी, ठीक। बस यार इसके बाद मैंने बस नीचे कॉपी पेस्ट करने में गलती की, लॉजिक कुछ गड़बड़ नहीं है, ये मैंने कॉपी करने में गलती की। सो सबसे पहले अभी मैंने क्या किया, हाफ एंगल फिर 1/3 किया ना, क्या किया मैंने अभी, क्या किया, हाफ फिर 1/3। पहले हाफ फिर 1/3। हाफ से पहले 1/3, तो 1/3 इसका क्या होता है बताओ। So 4 ऑलराइट, 1/3 6x का 1/3 कितना हो जाएगा बताओ। -3 cos 2x। Alright, is this clear everyone? Yeah, please check everyone and reply yes. समझ में आया सबको? Yes sir। yes sir ये का 1/3 a, तो 6x का 1/3, 6x का 1/3 will be 2x, right? अब देखो cos, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 2x का होल क्यूब, और यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos 2a का कौन सा, हाफ एंगल वाला, कौन सा 4 है ना, कौन सा बताओ, सेकंड वाला, जिसमें आंसर cos में आ जाए। बाकी सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं करने वाला हूं, बिकॉज यू नो बेटर क्या कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो आई एम जस्ट लीविंग टू यू। करना क्या है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है कि नहीं, पता है ना सबको को, a माइनस बी होल क्यूब का, which is a क्यूब minus b क्यूब minus 3a square b plus 3ab square. All right, so do you find any problem? You can first convert 1/3 angle, half angle or 1/3 angle, that is up to you. Now let me just start the next sum, that is number d. But I want everyone to just give a try once. See, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट साइड में जो मुझे दिख रहा है वो पावर कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, पावर कहीं नहीं दिख रहा है। चलो एंगल को तो कन्वर्ट करने का हम लोग के पास फॉर्मूला है, एंगल को आधा करना है, एंगल को 1/3 करना है, ऐसा कोई फॉर्मूला है, लेकिन पावर को सिंपल बनाने का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। सुनना एक बात, लिसन हियर एवरीवन, if the formula of 1 minus cos 2a is 2 sin square a, everyone note down. So can I say that the formula of sin square a will be, the formula of sin square a will be 1 minus cos 2a whole thing divided by 2. Please check once. Yes sir। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो फिर sin स्क्वायर a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 minus cos 2a whole thing by 2. ओके, अब देखो, अब cos 3a का फॉर्मूला है 4 cos cube a minus 3 cos a, तो फिर cos cube a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, तो cos cube a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos 3a plus Plus 3 3 cos a by by 4. cos 3a लेफ्ट में लेके आ जाओ, प्लस 3 cos a whole thing by 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक काम करो, cos क्यूब x में, cos क्यूब x में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, sin स्क्वायर x में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो बताओ तो cos क्यूब x में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, बताओ cos 3x plus 3 cos x by 4, ठीक है, sin स्क्वायर x में 1 minus cos 2x by 2, 2 4 जा 8. Let me multiply these two part. I mean bracket में जो भी multiply करें,
So we have cos 3x into 1. Cos 3x minus cos 3x into cos 2x plus 3 cos x plus 1 is 3 cos x minus 3 cos x into cos 2x. ठीक है, अब देखो ध्यान से प्रॉब्लम बहुत सारा, एक देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, देखो हमको जिस फॉर्म में चाहिए यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। देखो क्या आ गया बताओ, तो प्रोडक्ट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन सा फॉर्मूला बताओ तो, विच फॉर्मूला डू आई नीड टू अप्लाई? 2 cos A cos B। लेकिन टू बोल रहे हो तुम, लेकिन टू है या फिर नहीं? तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम करते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर देते हैं, मतलब हाफ कर देते एंड इनटू 2 कर देते हैं। ठीक है, और इसमें भी 2 चाहिए आगे, तो इनटू 2 और हाफ। Alright everyone, now let me apply the formula of 2 cos A cos B. What is the formula of 2 cos A cos B? The formula is cos of A plus B plus cos of A minus B. वापस यहाँ पे 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला हो जाएगा cos of A plus B plus cos of A minus B. Okay, now just you need to do is you need to take LCM and that's all. LCM लोगे आंसर हो आ जाएगा, अब कुछ करना नहीं ज्यादा खास। So we have cos 3x minus cos 5x plus cos x whole thing divided by 2, ठीक है, by 2 plus 3 cos x minus 3 times cos 3x. What is cos of minus theta? Is equals to cos theta, whole thing divided by 2. अब बस एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके बहुत जाए। चलिए इसको सिंपलीफाई करना सकते हैं, टेक एलसीएम एंड सिंपलीफाई। टेक एलसीएम, so you get 2 times c, LCM will be 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 3x minus, if you open the bracket, cos 5x minus cos x plus, if you take LCM, you get 2 3 just 6 cos x minus 3 times, if you open the bracket, you get minus 3 cos 2x minus plus minus 3 cos x, whole thing divided by 2. ठीक है, मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लिया तो 2 इधर आ जाएगा, 2 into cos 3x, ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा, ओपन द ब्रैकेट, 2 3 is 6 cos x, open the bracket. Now so we have 1 by 2 is 16, और ब्रैकेट के अंदर आएगा, देखो ध्यान से क्या आएगा, देखो लिसन हियर, what is, let's simplify all cos x वाला टर्म। So what is 6 cos x minus cos x? 5 cos x. What is 5 cos x minus 3 cos x? 2 cos x. All right. अब बचा तुम्हारा minus cos 5x. और उसके बाद क्या बचा बताओ तो? उसके बाद बचा तुम्हारा, is there anything like जो देखो माइनस cos 3x। सॉरी ना, ये मैंने गलती से ना यहाँ पे cos 2x लिख दिया, ये 3x देखो, ये minus 3 cos 3x. So what is 2 cos 3x minus 3 cos 3x? It is minus cos 3x. तो ये मेथड थोड़ा मुझे रियलाइज हुआ लास्ट में कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इसको आरएचएस से लेकर कराना चाहिए था तुम लोग। लेकिन चलो बढ़िया है कि तुम लोग को ये मेथड भी पता चल गया, ठीक है, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग, कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है ना, मैं प्रैक्टिस, हम लोग तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो ऑल पॉसिबल वेज बताना और अच्छा ही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे मैंने क्या गलती किया था, -3 cos 3x था, वहां पे 2x लिख दिया, तो बस सिंपलीफाई कर दिया। राइट हैंड साइड बहुत इजी, मतलब राइट हैंड साइड में ना दो, मतलब जितना मैंने किया ना उसका आधा स्टेप्स में आंसर आ जाएगा, तो एक बार कॉपी करो।
सर आप RHS दिखा देते ना. Yeah, listen to me everyone. Please try, I mean yourself, okay, taking RHS. बता रहा हूँ मैं क्या करना है. ये टर्म ऐसे छोड़ देना, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेना और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना. You'll find something common and then you can try, I mean try करना एक बार. ये चीज ट्राई करो. Everyone note down question number E. मैं अभी E सॉल्व करने का एक बार टाइम दे रहा हूँ, तुम एक बार E ट्राई करके देखो. Okay, try once. Everyone listen here. I'll give you time to try number E and F. पहले तुम लोग E और F को try करना, and then I'll solve in the next class. I'll not solve today.